सनी जी का Guys, थोड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है। आप बताइए, जब आपको सबसे पहले बताया गया इस तरह का म्यूजिक करना है, फीचर करना है, तो आप बताइए क्या फीलिंग थी? व्हाट्स योर फीलिंग एंड व्हाट डू यू से अबाउट? So when I didn't hear the song until after I'd seen Tabush sir's work. मैंने उनके गाने देखे and उनका काम देखा था YouTube पे and मुझे बहुत अच्छा लगा. It's so inspiring to work with somebody who is so creative and so blessed in the art of music and song. So मैं बहुत excited थी and जब मैंने गाना सुना, look, I got goosebumps. जब मैंने गाना सुना, I was even more excited about it, and I think it's come out beautiful. As far as the concept, everything was created by Tapush sir and Sunny Rajani, the director, and Daniel, and they told me all about it, and मुझे अच्छा लगा. Okay, sir. Yeah. लवली एक्सीडेंट के बारे में कुछ बताइए. It's in fact a lovely accident to me because this is one of the most loveliest accident that ever happened in my career, because I never thought that I am going to be standing here doing this song in Bollywood. And I once again want to thank Daniel, especially again Sunny, for being so supportive. Again, I want to thank Pritam Da, because I am a biggest fan, one of the biggest fan of Pritam Da, and I shared on stage in 2011, and our brotherhood and friendship is since 9 years at least. So, and his magical company is Jam8, where all the gems are there, all the magicians are there. His directions to them will lead a new industry, will create a new industry to Bollywood. So I was inspired to work with all of them. I was inspired to work with Sun City, because I have never seen such a dedicated professional team. I didn't have the opportunity to see a lot of team, but I am sure that this is one of the best production team that ever exists in the world. So Daniel, Sunny, Pritam Da, Jam8, all the talented composers like Kaushik, Akash, Guddu, Ashwin did the sound, Manoj Da did the whole management, Shlok was the lyrics, Harjot was the co-singer. Every single person of Jam8. I am a big fan of Jam8 and Sun City, and thanks Z Music for releasing this song. And introducing me to Bollywood is somehow done by Daniel. It's his concept, and now I have a lot of plans with Pritam Da too, but first my launch, I said that it's a blessing for me to have the brother composer from India, the best composer that I have ever seen in my lifetime. Here's Pritam here standing with me. कीर्तन जी, बहुत सारे गाने हम आपको देखते हैं. इस बार आपके गाने में सनी लियोनी जी है. हाँ, एक्चुअली गाना मेरा नहीं है, गाना कौशिक आकाश गुड्डू का है. ये जो कंपनी है Jam8, जस्ट अबाउट म्यूज़िक, जो जहाँ पे बडिंग आर्टिस्टों को, बडिंग म्यूज़िक डायरेक्टर को चांस दिया जाता है, ग्रूम किया जाता है, ऐसा इसमें कौशिक आकाश गुड्डू, अभी तापस को मैं बहुत दिन से पहचानता हूँ. मेरा भाई जैसा है, बांग्लादेश से है. मेरे साथ बांग्लादेश का कुछ अलग कनेक्शन है, बिकॉज वो मैं उधर से एक्चुअली बिलोंग करता हूँ. तो उस टाइम से बहुत बातें होता रहता था कि उसने बोलता था मुझे गाना करना है, मुझे गाना करना है. एक दिन आया और मुझे बोला मुझे अब भी एक गाना करना है. मैं अभी नया Jam8 का नया स्टूडियो चालू है, तो वो लोग उधर है. तो आया तापस, तो बोला अच्छा तू उधर जा. तो ही वेंट देयर एंड इमीडिएटली उधर बैठ के सबके साथ जैम करके इसने कौशिक आकाश गुड्डू और श्लोक के साथ मिलके ये गाना हुआ है, ये गाना बना है. और एक्चुअली ये गाना का जो था, गाना मैं थोड़ा सा पहले हल्का सुना था, मेरे को उतना लगता था ठीक है अच्छा गाना है, बट इसके साथ बैठने के बाद जो गाना का फॉर्म लिया एंड द फ्रेज लवली एक्सीडेंट जो इतने अच्छी तरह से आया, बिकॉज ये भी बहुत अच्छा कंपोजर है, बांग्लादेश में रूल कर रहा है. तो Jam8 के बच्चों के साथ वो लोग भी बोल रहा था कि तापस के साथ मिलके काम करके जो उन लोगों को भी एक्सपीरियंस हुआ, मैं यही चाहता हूँ जो एक्सचेंज ऑफ थॉट, एक्सचेंज ऑफ म्यूज़िक ये जो हुआ है, जो मैं हमेशा चाहता था, जो Jam8 फॉर्म करने का कारण हुआ है, वो तापस Jam8 के साथ काम करके एक सब कुछ एक साथ बैठ गया. और थैंक यू सनी, थैंक यू फॉर फीचरिंग. इट्स एक्चुअली लुकिंग सो लवली. मैं आई नेवर थॉट the song will look so lovely, sound so lovely. I am so glad, and I'm really looking, and I'm very very happy that
Jam It is a part of this song which you are starring in, and I am happy that my brother, whom I know for so long, and I'm so fond of, I'm really fond of him. Matlab, apart from music, also as a person, I'm extremely fond of him. That a concept like Jam It has been a part of his first Now Hindi I song. call myself as a family member of Jam 8. Of course, and I'm very like much proud of that. like I'm really happy, and it's a big day for all of us, and all the best to you, because And it's your I lot. want to add one thing and also request one thing to Pritam Da. Pritam Da belongs to Bangla background and whole Bangladesh loves Pritam Da like anything. So 2019 shall be Pritam Da's entry and giving something to Bangladesh. Of course, I request on behalf of Bangladesh to Pritam Da and Sunny's whole team, including Sunny, Daniel, and everyone. I invite all of you to Bangladesh and do something great for Bangladesh. Your production company, your performance will definitely enrich our industry. Sunny, how do you say, like, music has no boundaries? Definitely, actually, every artist. How do you see this combination? And as he said, you'll be seeing like Bangladesh, Bangla music. What I will say about the entire thing? I think that what I mentioned. Okay. Yeah, sir. I think that music has no boundaries. I think that music doesn't have a one language. It is universal. When music touches your heart, when music becomes a part of you, when it makes you feel good, when it makes you smile, it actually doesn't matter kaun sa language wo ga rahe. And I feel so honored that finally I get to work with Pritam sir and Tapush sir. It's such an honor and a privilege to work with such talented, beautiful people. Okay, Sunny, but how do you see the Bangladesh collaboration with Indian song in future? Okay. In future, मैं यही चाहती हूँ कि any part of the world, any part of any country, in particular maybe Bangladesh, the people should work all together. Let's create amazing things. Let's be creative and let's do what artists love to do and just create things. So I hope that it happens more often. प्रीतम इन दिनों थोड़ा कम दिखाई दे रहे हो आप. I mean, जैसे मैं public appearance कम करते हैं. What is the reason? क्योंकि मैं एक साल ब्रेक लिया था, थोड़ा सा कम, लेकिन वो ऐसे बोलते हैं ना लोग कि मैं थोड़ा सा सोशल मीडिया शाई हूँ, इसीलिए आपको दिख नहीं रहा हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि वे पीछे काम नहीं हो रहा है. तो ज़्यादा काम हो रहा होगा इसी. 2019 में काफ़ी सारे फिल्म आएगा और 2020 में भी काफ़ी फिल्म आएगा. मैं थोड़ा सा बीच में हल्का सा गैप लिया था, लाइव शोज कर रहे थे, इसीलिए. प्रीतम जी, आजकल जो पुराने गाने रीमिक्स या फिर रिक्रिएशन हो रहा है, तो आपका कहना है कि क्या वो सही चीज़ है? क्योंकि लोग जो है पुराने लोग, मतलब जो एजेड लोग हैं, वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते. तो व्हाट डू यू? देखिए, अगर कोई भी चीज़ टेस्टफुली किया जाए, अच्छा किया जाए, तो फिर अच्छा लगता है. कुछ गाने जो पुराने रिमिक्स हो रहे हैं वो भी बहुत अच्छा हो रहा है, कुछ गाने एकदम अच्छा नहीं हो रहे. जो अच्छे हो रहे हैं बहुत अच्छे हो रहे हैं. खाली मैं एक ही हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब पुराने गाने का रिमिक्स हो रहा है, रिक्रिएशन हो रहा है, उसके साथ साथ जो ओरिजिनल कंपोज़र है और ओरिजिनल लिरिसिस्ट है, उनका नाम और उनका जो पार्ट है वो लिया जाए साथ में, तो फिर अच्छा है. जैसे मुझे आँख मारे बहुत पसंद आया, लेकिन उसके साथ साथ तनिष्क के साथ साथ विजुषा का भी नाम आ जाना चाहिए हर जगह. Thank you so much. Thank you. Known as the sweet accident. Any particular accident where you feel was a कोई memory ऐसे share करना चाहोगे? Lovely accident. I think it would be the song. ये गाना lovely accident. Guys, just move a bit back, no, please. साल पहले रूना नैला आई थी बांग्लादेश से. आपका क्या ख्याल है? Let Sunny. Guys, wait. Sunny, क्या कहोगे? I think ये गाना lovely accident है. I think that when you have one person who's Tapush sir comes to Bollywood, comes to India, has amazing friends, and all the people that have come together to make this song, I believe that's a lovely accident. प्रीतम जी, एक ये सवाल ये है कि इन दिनों नसीरुद्दीन शाह ने कहा है कि विराट कोहली जो है Bro, let's just. गुरु व्यवहार करने वाले क्रिकेटर हैं. आप मानते हैं कितना सही है ये? मैं तो
ये जो आपने बोले मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं, तो मैं कैसे, और मैं उतना क्रिकेट का फ़ैन भी नहीं हूँ, मतलब ऑड, मैं थोड़ा सा ज़्यादा फुटबॉल फ़ैन हूँ इस देश में जहाँ मैं क्रिकेट फीवर है, बट मैं ये इसके बारे में कुछ सुना नहीं, मैं ज़्यादा मैचेस भी नहीं देखता हूँ, तो ये इसके बारे में कमेंट करने के लिए। अच्छा, मैं वही पूछ रहा था सर, यू नो हम कुछ साल पहले रूना लैला बांग्लादेश से आई थी, तो अभी आपको 20 तारीख को थोड़ा पीछे आ जा, थोड़ा सा साइड हो जा, थोड़ा सा भाई, थोड़ा सा पीछे हो जा, धक्का मत दे, आराम से कर ले। अरे थैंक यू यार, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं अपने शो ना टकराना है, और मुझे हुक लाइन भी बहुत अच्छी लगी, लवली एक्सीडेंट है। और जब फर्स्ट टाइम सुना मैंने कि गाना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आप सेटअप कुछ भी बना लो, जब तक गाने में वो दम नहीं होगा, तो जब गाना सुना तो तपोज जी का ना एकदम वो कमर्शियल वैल्यू होनी चाहिए आवाज़ में, वो इनकी आवाज़ में है। मैंने बोला यार गाना ये बहुत बढ़िया, मैं इस पर बड़ा इंजॉय करूँगा। हाँ, फीलिंग, अरे मैं बहुत एक्साइटेड हो गया, क्योंकि सनी इतनी अच्छी परफॉर्मर हैं और उनके गाने इतने सारे सुपर हिट हुए हैं, तो मुझको था कि अगर गाना अगर करना है तो फिर सनी के साथ करो, तो फिर मज़ा बने, ना कि कोई मैं नया कुछ इधर उधर कुछ कर लेता। तो आई थिंक दिस वाज द बेस्ट चॉइस, और कॉम्बिनेशन का मज़ा है कि सनी का अपना एक अलग सिस्टम है और हमारा एक अलग सिस्टम है, तो वो जो बॉलीवुड और स्टाइल का जो मैच है ना, उसका मज़ा है इस गाने में, तो वो आपको देखने के लिए मिलेगा, तो वो इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड था। हाँ 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 हाँ, नहीं, मुझे कोई सिंगर बनने का शौक़ नहीं है, मैं परफॉर्मर बहुत अच्छा हूँ। हाँ, वो बहुत सारे एक्टर्स जो होते हैं, जब बीच में गैप आ जाता है ना, तो फिर वो अपना एक एल्बम निकालते हैं। मैंने बहुत नोटिस किया है कि वो फिर सिंगर बन जाते हैं। मुझे कोई सिंगिंग का शौक़ नहीं, मेरी फैमिली में सब सिंगर हैं। गोविंदा जी बहुत अच्छा गाते हैं, उन्होंने कई गाने भी गाए हैं, मेरी सिस्टर्स भी सब गाती हैं, बट मुझे सिंगिंग का कोई शौक़ नहीं। मैं ऐसा कोई प्रोडक्शन हाउस नहीं खोलने वाला कंपनी का। हाँ, हो सकता है प्रोड्यूस कर लूँ शो कोई, या कोई फिल्म प्रोड्यूस कर लूँ। एक्चुअली ख़त्म कर ली मैंने फिल्म अभी, उसके बारे में मैं अभी ज़्यादा बोलता नहीं, क्योंकि आपको फिर बुलाऊंगा ही। मेरी एक फ़िल्म आ रही है जिसका नाम है मरने भी दो यारों, कॉमेडी फिल्म है, अभी कश्मीरा ने डायरेक्ट की है वो फिल्म। हाँ, तो वो फिल्म कंप्लीट हुई है, तो उसको भी मैं लेकर आपके सामने जल्दी आऊँगा। आई थिंक कपिल के शो पे ही हम लॉन्च करेंगे ये गाना भी। हम अभी तो चलिए यूट्यूब लॉन्च हो गया इसका, लेकिन अभी इसको टीवी लॉन्च हम जल्दी कपिल शर्मा शो पे कर देंगे। अभी वही प्लानिंग चल रही है कि कब आएंगी सनी, क्योंकि मैं भी हूँ शो पे, तो मज़ा आएगा। माइंड ब्लोइंग, इतनी बढ़िया और इतना मज़ा किया हम लोगों ने। इतना कपिल को आप लोगों ने डांस करते नहीं देखा ना, इतना मैंने भी अपने लाइफ में नहीं देखा था। इतने साल हम लोगों ने साथ में काम किया। कपिल यार बहुत अच्छा डांसर है, और क्या डांस किया है कपिल ने अपनी शादी पे, और इतना मज़ा आया। इतनी प्यारी फैमिली है। मैं आपको सच बताऊं, हम बॉम्बे वाले, मैं फ़र्स्ट टाइम उनके उस घर पे गया हूँ उस तरफ, क्योंकि मैं सुदेश जी के यहाँ जाता था जब अमृतसर जाता था। कपिल की मम्मी ने, उनकी सिस्टर्स ने और उनके ब्रदर ने इतना प्यार दिया हम लोगों को, मुझको, भारती को। मेरी फैमिली गई थी, मेरी सिस्टर गई थी, और जितने लोग बॉम्बे से आए थे, इतना ख्याल रखा उन्होंने। इट वॉज़ वंडरफुल। मैं एक्चुअली 3 दिन के लिए गया था। कपिल ने कहा 10th को आओ, तो 10th को जगराता था। जो पिक्चर मैंने डाली थी सोशल मीडिया पे, वो बहुत इधर उधर गई थी। 10th को जगराता था, 11th को फिर कोई संगीत था, फिर एक दिन गज़ल नाइट थी। मैं सारे फंक्शंस के लिए रुका। मेरा मन था कि मैं 2 दिन, मैंने सोचा 2 दिन रुक के आ जाऊँगा, बट इतना प्यार दिया पूरे परिवार ने, और इतना मज़ा आया कपिल के साथ कि हम पूरे 4-5 दिन रुक कर आए, और इतना खिलाया सब ने। अभी थोड़ी डाइटिंग करते हैं। शो ऑन एयर हो रहा है, माइंड ब्लोइंग। हम लोग तो बहुत हम लोग है पूरा, मैं अगर ज़्यादा बड़ी बात ना बोलूँ तो पूरा हिंदुस्तान इंतज़ार कर रहा है कि कब ये शो आएगा, फिर से हंसने का मौका मिलेगा। और अभी कोई कॉमेडी शो है भी नहीं ऑन एयर, तो ये जो अगेन कॉम्बिनेशन का मज़ा, कपिल, मैं, भारती, कीकू, तो ये कॉम्बिनेशन जो कॉमेडी सर्कस का था पुराना, वो साथ में आ रहा है। इट्स गोना बी अ लॉट ऑफ फन। हमारा एपिसोड आने वाला है रणवीर के साथ, रणवीर सिंह और रोहित सर के साथ में, और हमने कुछ आध अभी एपिसोड शूट किए हैं। ज़्यादा मैं खुलासा नहीं करूँगा। भाई के साथ तो किया ही है, भाई प्रोड्यूसर है हमारे शो के, तो सलमान भाई के साथ भी बहुत मज़ा आया।
देखेंगे आप, मैं बहुत ज़्यादा कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इट्स गोना बी अ फन फिल्ड ब्रिलियंट शो। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। और कपिल के लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, आप मुझे हमेशा पूछते थे उसके बारे में। हम शो राइवल्स भले थे, लेकिन मैंने बहुत सालों के बाद कपिल को लाइव देखा बैठ के। वो जो क्वालिटी है कपिल के अंदर, वो ऐसे ही नंबर 1 पोजीशन पर नहीं है। उसके अंदर वाकई वो क्वालिटी है, वो जो परफॉर्म करता है और वो जो बैठ के इंटरव्यूइंग करता है, परफॉर्म करता है। आई थिंक इट्स वंडरफुल। मुझे बहुत मज़ा आया और आई लर्न, मैं सीखता भी हूँ। कपिल ने मुझे सिखाया भी कि ऐसे कर वैसे कर। हमने कैरेक्टर पे भी वर्क किया है, बहुत चीज़ों पे हम वर्क कर रहे हैं। आपके पास क्योंकि एक्सपीरियंस भी, इसलिए पूछ रहा हूं, शादी के बाद वाली टिप्स दी आपने शादी के बाद भाई कैसे? नहीं, उनको क्या टिप्स देना, उनकी वाइफ बहुत सिंपल और बहुत अच्छी हैं। वो तो मुझे टिप्स चाहिए। कॉमेडी शो आपकी जो आ रही है वो और एक स्टार प्लस पे भी आ चुकी है और एक कानपुर वाले खुला है, उसके साथ बहुत कंपेयर किया जाए। अरे बहुत अच्छा, वो भी सुनील ग्रोवर। सी कैरेक्टर की जो पकड़ है ना, हर एक्टर का अपना एक स्टाइल होता है। कोई कुछ चीज़ में अच्छा है, कोई कुछ चीज़ में अच्छा है। सुनील की कैरेक्टर की जो पकड़ है वो हम भी नहीं कर सकते भाई। हम तो खुला मीडिया में बोलता हूँ मैं कि कैरेक्टर जो पकड़ता है सुनील, वो कोई नहीं पकड़ सकता। तो इसीलिए उस चीज़ में उसकी वो अलग उसके लिए वो फेमस है। और जहाँ तक कि मैं एपिसोड के प्रोमोज देख रहा हूँ, प्रीति सिमोन, उनके साथ मैं ड्रामा कंपनी, आप लोग सब लोग आए थे, मैंने 7-8 महीने ड्रामा कंपनी किया। एक मैं ही हूँ जो घूमा हूँ पूरे देश में। प्रीति के पास भी, इधर भी, कॉमेडी सर्कस भी, अब कपिल भी, OMG मेरा इंडिया, वो भी बहुत बढ़िया। अभी उसका 5th सीज़न, उसका भी 1-2 एपिसोड गए, वो भी बहुत बढ़िया चल रहा। तो प्रीति बहुत ही इंटेलिजेंट है वो अपने क्रिएटिव्स में, क्योंकि जब मैं काम कर रहा था तो मैं देखता था कि प्रीति का एक बहुत डिफरेंट क्रिएटिव है, जो प्रीति ने भी लर्न किया है डेफिनेटली कपिल से। क्योंकि कपिल, आई थिंक ही नोज़ हाउ टू मेक अ शो, ही नोज़ हाउ टू कैसे शो बनाना और कैसे परफॉर्म करना और करवाना, वो कपिल की बहुत एक अच्छी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो कि मैं भी सीखता हूँ उनसे। तो प्रीति का भी मुझे लगता है बढ़िया शो होगा। अच्छी बात है, हेल्दी कंपटीशन हो, कॉमेडी शोज़ चलेंगे, एंटरटेनर्स को इज्जत मिलेगी, और जो कि हम सबको मिल रही है आज की डेट में। तो अच्छी बात है, सुनील का भी शो चले, हमारा भी शो चले। थैंक यू सो मच।